Hello, a very good, happy, and positive evening, everyone. Lecture cadre preparation, day 2. Day 1, we had report card, menu, our planning, things you will have, a basic start, and a wonderful start. With that, with the same positive note, we are here with day 2, and those who are master cadre students, they should have attend करनी चाहिए थी और क्योंकि यहाँ पर आज हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो कुछ अलग चीजें, कुछ रिवीजन हो जाएगा और कुछ आपको अलग इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। डे 2 आपको पहले मैं आज का स्केड्यूल क्या है वो देखेंगे, ठीक है। फिर उस तो बाद आप आगे चलते हैं भी आज अपने की क्वेश्चंस होंगे 15-16 questions, but a lot of added information to those 16 questions, and hopefully you will find yourself enriched with the good knowledge at the end of the day. Sanchita, very good evening. The number has gone to 90s. That's very good. I hope this number would grow. Day 2 meant for all added knowledge जो अपन लोड है तो शुरू करेंगे उसके साथ ही जी तुम इंफॉर्मेशन वैसे कोई गल करनी है तो पूछ लिया जी। तो शुरू करते हैं कि आज में क्या हमने करना है, ठीक है। आज अपने को की चीज है, आज का स्केड्यूल क्या रहने वाला है। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस डेज। सो ड्रीम इंस्टीट्यूट लेक्चर कैडर इंग्लिश डे 2, you are here with the second day's preparation, and we hope we'll have lots of new students. Demo class schedule for October 19. Those who are having their day 1 today, they should mind that we have 3 days demo, a day already spent with positive note on October 18, schedule, planning, and lots of information has already been shared. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। October 19 schedule, what to do, लेक्चर का बैच आ गया, लेक्चर पेपर आ रहा है, करना की है, how to prepare, and then the part 3 today's MCQs 16 MCQs। कल ਆਪਾਂ 4 ऑप्शंस नाल करांगे, नवीं चीज़ां करांगे और फीचर्स एजेस के बारे में करेंगे। क्विज की प्रिपरेशन, यहाँ भी क्विज की प्रिपरेशन ही हो रही है, ठीक है ना। क्विज की प्रिपरेशन इधर भी है क्योंकि जो क्वेश्चंस हो गए ना तो क्विज ही है एक तरह का, क्योंकि बात तो हम इन लिटरेचर की कर रहे हैं। हाँ, बस ये उन्होंने लगता होगा कि क्वेश्चन बड़े बेसिक्स ने, लेकिन इसमें कुछ आज एडेड इंफॉर्मेशन भी है जो बड़ी काम आ सकती है। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट our first thing, what to do. We have planned the previous day, we have seen the planning, we have seen the facilities being catered to you by the academy. We'll continue with the same note. Now the first question that comes to the mind of students, the time we are here, what to do, करना क्या है, किवें प्रिपरेशन करनी है। कुछ तुहानू मैं इहदे बारे कल दस्सिया सी, अगली इंफॉर्मेशन की है जरा वो देख लो। फर्स्ट, join and trust us, the biggest thing। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, you need to trust those, and we promise that we'll carry your trust, and especially for the new student, those who are already with us, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ the sort of preparation that we carry on till last day, ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ preparation ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। and I can give you hundreds of example, those who are here and be the already be the part of this one। so सबसे पहले आपको बस ये करना है कि join and trust us। It's not about master cadre or lecture or UGC. It's all about trusting your caliber. We trust you, and then trust us that we'll cater you lots of facilities। Any मेहनत तुहाडे वास्ते कीती जाएगी कि the dream you have seen would come true। Next part, devote yourself। In this, there are few things। अब देखो स्टूडेंट से माइंड की आ रहे हैं, मैं तो ऑलरेडी जॉब अच्छा, बट यू कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, यहाँ टिके थोड़ा रहना है, आगे भी तो जाना है। वन थिंग, ठीक है। फिर टाइम किवें निकलेगा, किवें डिवोट करांगे। मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी उम्बर्टो इको की। ही यूज्ड टू से कि आई राइट माई प्लेस ऑन संडेज। संडे का मतलब होता है वो कहता भी मैनू जदों भी टाइम मिल जाए ना मैं लिख लेना। मतलब
कोई मेरे को मिलने आए और मिलने में 5 मिनट लगा दिए, 5 मिनट में मैं एक स्टोरी लिख लेता हूँ। तो टाइम 24 घंटे सारे को है, जरूरी नहीं है कि 12 घंटे ही कटने होंगे ने, 12 आवर्स इट्स नॉट मैंडेटरी। यू टेक 3 आवर्स 2 आवर्स बट डिवोट योरसेल्फ होल हार्टेडली। वो 2 घंटे स्मार्ट वर्क दिखना चाहिए कि तुसी जो चीज कर रहे हो वो बिल्कुल फोकस्ड हो, सॉर्ट ऑफ ए मेडिटेशन फॉर यू, नो फोन्स नथिंग एल्स, जस्ट डिवोट होल हार्टेडली एंड देन सी योरसेल्फ। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हट जाएगा and you will scale the heights of success that you have desired for yourself. When you join us, definitely you will have a point to prove that you trust us. ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ never miss revision class. The biggest boost of this platform is this. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ठीक है, इन्नी चीज़ा एक बार इन्ना बार कर लो, इन्नी बार कर लो कि तुहानू उत्थे जाके लगे ईजी। अब ये तो लर्न करने क्या है, हर चीज़ नू ट्रिक किया जाएगा, ऑलमोस्ट जिहड़ी चीज़ तुहानू सौखी बन जाए लर्न करनी, यू विल फाइंड इट वेरी ईजी, नॉलेजेबल, एवरीथिंग गोइंग योर फेवर। सो प्लीज डू नॉट मिस रिविजन क्लास। हुण कुछ बच्चे है जिहड़े आ रहे हैं, कुछ खाना कैमरा ऑन होता है, खाने बना रहे हैं, कुछ अपने बच्चे नू सुला रहे हैं, कुछ मतलब दे आर डूइंग देयर डेली कोर्स, लेकिन विद दैट नाल एक ये भी है कि अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज दे नाल दे आर अटेंडिंग रिविजन क्लासेस, तो वो साडे लई सब तो वधिया है, क्योंकि ये पॉइंट ही तुहानू तुहाडे जॉब ते ले जाण लई एक बहुत वड्डा पॉइंट सिद्ध होएगा। नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम नंबर 1 पे लिखते हैं, स्टे काम एंड पॉजिटिव। इफ यू ट्रस्ट अस देन यू नीड टू काम एंड बी पॉजिटिव। तुसी जदों काम हो जाओगे, शांत हो जाओगे, ये जॉब लैनी बहुत आसान है। असी डिस्टॉर्टेड माइंड नाल कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। वी हैव ए फिक्स्ड माइंड, सिंगल माइंडेड, फोकस्ड, डिटरमिन्ड, एंड देन अगेन पॉइंट टू से ट्रस्ट अस, वी आर हेयर फॉर यू। असी हैगे तुहाडे लई, तुहानू तुहाडे ड्रीम तक पहुंचा के रवांगे। अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं। थैंक यू वेरी मच। निशा ने, अब सभी पढ़ ही रहे हो, मेरे को भेजा है डायरेक्ट, मैं आपको पढ़ देता हूँ। आफ्टर ज्वाइनिंग ड्रीम्स आई चेंज अ लॉट माई सेल्फ विद पॉजिटिव एनर्जी, विच में एक वर्ड योर हटा दिया मैंने। पॉजिटिव एनर्जी निशा, जो तुहानू अच्छा दिखता है ना, तुसी वो चीज नू अपने आप कैप्चर भी कर दे तो दूजिया नू भी अपने वाले कैप्टिवेट कर दे, तो अच्छी चीज है जी। हाँ, सुनीता कह रही करदे काम नाल स्कूल मैनेज किवें करिए। देखो 2 घंटे लगा रहे हो कि 3 घंटे, आप में से 70% यहाँ पर वर्किंग है, 70% होंगे सुनीता आराम नाल। 2 घंटे जो कदे कदे कुछ चीज़ां वड्डियां लई ना छोटे छोटे सैक्रीफाइस करने पैंदे ने। कोई मिल्खा सिंह पहले दिन ही नहीं भज के चल गया सी और उसने गोल्ड मेडल ले लिया, तो चाहे पीटी उषा ले लो और चाहे आप किसी भी खिलाड़ी चाहे नीरज की गल कर लो, ये एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। थोड़े जे सैक्रीफाइस करने पैंदे ने। इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, माइंड इट एक ऐसा टाइम सी मैनू, मतलब 1 घंटे दे आई कैन नॉट लेट यू नो कि मेरे कहते थे आ जाओ 1.5-2 घंटे लाओ 80 रुपए देंगे, तो आई यूज टू हैव इट यार, चलो कोई सिखांगे। लेकिन आज उस चीज को देखता हूँ तो एक्सपीरियंस मेरे कितना कम आया। स्ट्रगल, कुछ मेहनत जो आपके कभी ना कोई काम जरूर आएगी। अमन, पढ़न का मन करेगा, बिल्कुल करेगा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡੇ ਆਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਪਨੀਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, तो नो प्रॉब्लम। 1-2 दिन मन करता है ना मस्ती करो तो करो, बच्चों से खेलो, म्यूजिक सुनो, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। हरमन, मेरी क्लास से तुहानू आंदा सारा कुछ है, जो इकट्ठा हो जाता ना कदे कदे लगता है, बट इट्स ऑल फाइन सब। वेल डन शिवानी, से मॉर्निंग 6 to evening 5 वर्किंग। मैं भी ऐसे करता हूँ शिवानी, मैं 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद लेके लास्ट तक इट्स ऑल डूइंग इट। लेक्चर कैडर की रिवीजन भी होगी, सब कुछ होगा जी, बिल्कुल होएगा। वेल डन अमन, वेरी वेरी गुड। अब नहीं आता, बहुत इंप्रूव होएगी, शाबाश, वेरी गुड। तो देखो अपने क्वेश्चन के आंसर उसे दे ले। हुण आपां चलिए अगे कि आज हमने 1 घंटे में क्या क्या सीखना है, नवा की सीखांगे आपां। तो ये तो हो गया आपका आज का हाउ टू डू। नहीं अश्मीत, कोई औखा नहीं। आपके तो 2 बच्चे हैं, मेरे तो 70 बच्चे हैं, सोच लो। और उसके बाद 500 और भी हैं, उसके बाद 50 और भी हैं। मैं सारे बच्चों के फोन सुनता हूँ, सब बच्चों को संभालता हूँ, एंड ऑल दे बी वेरी हैप्पी विद मी एंड दे फाइंड इट वेरी गुड टू बी इन माय कंपनी, सेम इज विद यू।
कुछ नहीं होता, सारा कुछ कर लांगे, कोई मुश्किल नहीं का। थैंक यू शालिनी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर अश्मीत सानू तो सेकंड थॉट ही नहीं आता, यू जॉइन अस इट मींस जॉब्स डन। टाइमिंग जिसका भी जूम यूजर लिखा है, नाम तो नहीं लिखा, तो टाइमिंग जो है ना फिक्स्ड है 30 अक्टूबर से लेके, मतलब कल तो लेके जो भी क्लास लगनी 31 मार्च तक, टाइम 5 से 6 रहेगा, और रिवीजन टाइम 9 से 10। चलो अब करते हैं हम आज की आगे बातें, क्वेश्चंस क्या सीखने जरा वो भी देख लें। ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपेयर किवें करना है, छोटी जी ਤੁਹਾਨੂੰ एक झलकी दिखा रहे हैं कि रीड बुक दैट इज गिवन टू यू। मैंने आपको याद रखना, मैंने वर्ड रीड लिखा है, मैंने यहाँ लर्न नहीं लिखा है। आर वे इज रीड एंड रीड अगेन, रीड रीड लर्न अपने आप हो जाएगा। और इस बार हमने एक मोटिव भी दिया था, माई प्रेपरेशन माई वे, माई प्रेपरेशन माई वे। इसका मतलब ये है कि आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना अपने आप को, वो इतना पढ़े हैं, यूजीसी की है, पीएचडी की है, यहाँ पर ग्रैंड फिनाले है, परफॉर्म करके ही जीत सकते हो, और वो परफॉर्मेंस आप अच्छी दे सकते हो। ठीक है, सो फॉरगेट कि आपको कुछ इसमें अलग करना है। लो जी, रेड कलर यूज कर लिया सोनिया। ठीक है, तो वरी नोट, यू जस्ट रीड बुक्स, बुक को पढ़ना है, एमसीक्यूज पढ़ने हैं, पेपर उसी में से ही आना है, 101% आएगा, कोई 99 नहीं है। कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप गेटिंग बेटर। होएगा कि एक चैप्टर करोगे, दूसरा करने जाओगे, पीछे वाला भूल गया, तीसरा चैप्टर करने जाओगे, सेकंड वाला भूल गया, भूला नहीं है, और थोड़ी देर ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ सबकॉन्शियस माइंड चला गया, एंड देन अगेन। ठीक है, फिर जब आप जाओगे तो फिर आपको लगेगा, लेकिन जो तो पढ़ोगे, कल ही मेरे को कनिका का फोन आया था, सर करेक्टर बोलते हैं, वेरी गुड इवनिंग आरती, वी वर वेटिंग फॉर यू। तो कहते वो करेक्टर बोलते हैं, मैंने उससे 4 करेक्टर पूछे, चारों के आंसर ठीक थे। मैं क्या, बस एवं होता है जो इकट्ठा हो जाता है ना, वी फील वी हैव फॉरगॉटन, बट इट्स नॉट दैट। So test yourself on MCQs. Whenever you want, you feel you have forgotten something. जैसे अभी अबन ने कहा, गो बैक टू MCQs है, कोई भी निकालो, टेस्ट करो, वापस आ जाओ। ठीक है, इन द एंड योर पॉजिटिव एनर्जी वुड वर्क। मैं तो पहले कहता, अगर तुम शांत काम हो, पॉजिटिव हो, थिंग्स आर वेरी इजी, थिंग्स आर वेरी इजी। अब आरती आई, चाहे आरती से पूछ लो, ठीक है, किसी से भी आप पूछ सकते हो, दे आर ऑल पार्ट जिन्होंने करा है। वेल डन राजवी, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग सुरभि, लेट हो गई। यस, हर बच्चा जो ये क्लास को सुन रहा है, वो चाहे 70 साल का है या 15 साल का है, आज ज्वाइन करा है, जो कल करा है, यू आर ऑल वेलकम फॉर योर पार्टिसिपेशन इन क्विज 24 अक्टूबर। आप कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑल वेलकम। ठीक है, चलो हम आप आज क्वेश्चन वाले चलिए। आज हम अगले 45 मिनट में क्या क्वेश्चन सीखने वाले हैं, 16 क्वेश्चन होंगे, फिर वेखांगे आप तुसी उन्हें किवें रिस्पोंड कर दियो। हाँ जी बिल्कुल, तबिंदा इसमें आरती भी आ गई, आरती ने ज्वाइन करा, सोनम कंबोज है, पल्लवी है, दे हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस, वो ऑलरेडी आ चुके हैं इसमें। ठीक है, तो और भी आएंगे अभी। ठीक है, सोनिया इसके लिए आपको मेरे को फोन करना पड़ेगा, या सुरभि को फोन कर लो अगर आपके पास नंबर है, तो नहीं तो नीचे आपको एक ड्रीम्स वाला नंबर मिल रहा है, ठीक है, उस नंबर पे फोन करके नंबर ले लेना मेरा। वेरी गुड इवनिंग सविता। चलो हम आप आज के क्वेश्चंस करिए। ठीक है, अब देखते हैं कि आज के क्वेश्चंस क्या हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम शुरू करेंगे, लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड हो गया जी, ठीक है, ये हम छोड़िए इसको, कल की स्लाइड रह गई है। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन 1, ड्रामेटिक मोनोलॉग टर्म एसोसिएटेड विद। तो लेट्स स्टार्ट, आज हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई जी। अब ये बेसिक क्वेश्चंस को आगे हम कैसे लेके जाएंगे, अपन किवें लेक्चर लेवल पे सोल्व करांगे, अब शुरू हो गया है। तो पहला क्वेश्चन, ड्रामेटिक मोनोलॉग टर्म एसोसिएटेड विद। वेरी गुड, शाबाश। सबका ये रिवीजन होगा, जो कुछ बच्चे भूल गए उनको याद दिलाएंगे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, तो वेल डन, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। आज आपका टेस्ट होगा सबका, यहाँ पर एक एक दो क्वेश्चन पे पाए ने जो टेस्ट करेंगे। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द राइट आंसर, अ पिंक आइड पोएट, गुलाबी आंखों वाला।
तो आप ये कह सकते हो राजेश खन्ना ने गाना बाद में इसके लिए गाया था, गुलाबी आंखें जो देखी तेरी, ठीक है ना। तो पिंक आइड मींस ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। एंड इरा, विक्टोरियन इरा विच इज नोन इन लिटरेचर, माइंड इट, लिटरेचर में इसको डार्क एज माना जाता है बिकॉज ऑफ द राइटिंग्स ऑफ मैथ्यू ऑर्लॉर्ड, थॉमस हार्डी एंड देन टेनिसन, रिटन लॉस्ट इन पेसिमिस्टिक नोट, बट रॉबर्ट ब्राउनिंग एक है जैसी जिन्हें एक ऑप्टिमिस्टिक नोट तय किया। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਰੋਬਰਟ ਬਰਾਉਨਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਫੇਲਿਅਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੀਨ ਲੋਟਸ ऑफ फेलियर इन हिज लाइफ, ठीक है, ड्रामा फेल, स्टेज पे फेल, पोइट्री में पहले फेल, बड़े फेलियर्स देखे, गॉट मैरिड टू हिज सीनियर, वेंट देयर विद हिज वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, केम बैक, और उसके बाद जो शुरू करा फिर बस इवन इन्ना फेलियर देखने के बावजूद भी ही वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, उसे पिंक आइड बोलते थे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द राइट आंसर। देखो ब्राउन बड़ा पिंक है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ पोम रिटन in the form of speech of an individual character। अब ध्यान रखना, speech और इंडिविजुअल कैरेक्टर, जड़े बच्चे नए ने उन्होंने, मोनोलॉग का मतलब होता है स्पीच, मोनो का मतलब सिंगल, जिथे बोलन वाला एक ही कैरेक्टर होएगा लेकिन सुनन वाले बाकी होंगे। आप ग्रेजुएशन में सबने पढ़ी होगी एंड डेल सेटो, वो वाली लास्ट राइट टुगेदर, ये वाली पोम है जो आपको दिखाएंगे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग एक पिंक आइड ऑप्टिमिस्टिक पोएट है। विद दैट हुन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने शुरू नहीं की सी, ही वाज नॉट द इन्वेंटर ऑफ दिस टर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग, इट इज मच ओल्डर, बहुत पुरानी जी पोइट्री है ना, वो भी किधर किधरे ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखी गई सी, लेकिन ही इज द वन हु ब्रॉट अ डिग्निफाइड वैरायटी टू दिस जॉनरा ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो उस तो बाद बड़ी फेमस हो गए। इस एज का जो लीडर था, चलो पूछ लेने बाकी जिन्होंने विक्टोरियन एज पढ़ी हुई है भी, जो पढ़ चुके हैं, बताओ इस एज का लीडर कौन था, ब्राउनिंग वाली एज का लीडर कौन था, क्योंकि उसने भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा था। वेल डन प्रियंका, शाबाश, वेरी वेरी गुड, यस वेल डन। क्योंकि विक्टोरियन इरा, जो विक्टोरियन एज है, दैट इज, जो विक्टोरियन एज है वो दैट इज लेड बाय टेनिसन। अब टेनिसन ने भी तो लिखा है ना, लीडर है तो इसने भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा, ठीक है, और टेनिसन ने लिखा तो इसने यूलिसिस लिखी, टिथोनस लिखी, कई चीज़ां तो मिलन गया जिंदे विच एंड ड्रामेटिक, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नोन फॉर दिस, लेकिन सब तो ज्यादा नाम जिंदा आंदा है वो है रॉबर्ट ब्राउन। देखिए इसमें एडेड इंफॉर्मेशन क्या है, द विक्टोरियन पीरियड रिप्रेजेंटेड द हाई पॉइंट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग, और इस एज में सबसे ज्यादा लिखी गई। टाइप करते करते भूलना जाना है, मेरी गल्लां सुनना। तो विक्टोरियन एज क्वेश्चन बनता है साडा, वो कौन सा पीरियड, कौन सी इंग्लिश लिटरेचर में एज है, युग है, जिंदे विच ड्रामेटिक मोनोलॉग पोइट्री सब तो ज्यादा लिखी गई, तो वो विक्टोरियन पीरियड है। क्योंकि आप टेनिसन और वैसे भी ब्राउनिंग का नाम आ गया तो समझ जाओ। नेक्स्ट वन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल, वेरी गुड, वेल डन पल्लवी, वेल डन आरती, आपके लिए वेल डन इसलिए बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग योरसेल्फ बैक टू द स्टेज, उसी जगह पे जहां से आपने अपना करियर, यहां से एक प्लेटफॉर्म पढ़ा और 2 साल बाद उस सीजन को याद कर रहे हैं। तविंदा ऑलरेडी ज्वाइंट, तो आंसर बिल्कुल जी फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग ही क्यों, इस एज में डैनियल डिफो भी था जिन्हें पहले तो लिखा, सैमुअल रिचर्डसन भी हैगा सी। तो फील्डिंग्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश नॉवल इज नॉट वर्थ। जो शेप, जो स्टाइल, जो चीज हेनरी फील्डिंग ने की है ना, वो बाकी करा उन्होंने भी है, लेकिन ही इज क्रेडिटेड मोर फॉर दैट। तो हेनरी फील्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी साडे लिए, ये कोई मास्टर कैडर या लेक्चर की बात नहीं है, इट्स अबाउट
इंपॉर्टेंस ऑफ ए क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेस है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो एबीसी आती है, तो हेनरी फील्डिंग नोवेल की बात हो रही है तो ही इज फादर, तो अपने फादर बारे ना बारे पता होना चाहिए सर। नेक्स्ट क्यों है जरा देखना, इट्स फील्डिंग। अब क्यों हुआ इसको, ये हम जो एडेड इंफॉर्मेशन है आज जेडे बच्चे नहीं आए मिस करेंगे। इट इज फील्डिंग who gave a definite form and proper shape to the English novel. It was written before Daniel Defoe, Samuel Richardson, and few others as well they wrote, but the one, Henry Fielding, he gave English novel a definite form, a shape, proper shape. What actually a novel should have been, किस तरह होना चाहिए सी, it's all been crafted and designed, presented by Henry Fielding. He formulated the theory of novel writing. उसने आपके लिए एक थ्योरी तैयार करी नोवेल किवें लिखे जाते हैं, सो इसलिए इसे कहा गया। लेकिन क्वेश्चन आ गया हुण साडे लई, हु कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, किसने कहा था उसे। अब मैं चैट को प्राइवेट कर रहा हूं ताकि तुहानू सारे ना जेडे कोशिश कर रहे हैं उन्होंने मौका पूरा मिले। अब आपकी चैट सिर्फ मेरे को दिखेगी ताकि बाकी जो ट्राई करना चाहे उन्होंने ना लगे। तो हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल कहा किसने? वेरी गुड, वेल डन। साक्षी ट्राइड वेल बट नॉट दैट वे, वेल डन वरिंदर, सोनिया वेरी गुड, निशा यस 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 वेल डन वेरी गुड। तो इसका आंसर देखे तो आपा ये पता लग गया फील्डिंग को क्या गया, लेकिन कहा किसने जरा वो भी देख ले। ठीक है, तो who called him the father of English novel? It was Sir Walter Scott. Very important question. Walter Scott gave him the title for his writing, called Henry Fielding the father of English novel. An important question, important question. आज बहुत सारे फादर्स के बारे में हम जानने वाले हैं, तो क्यों किन्ने किया, साडा बेस तैयार होएगा उस पे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये बीच में से कल की स्लाइड आ गई है, आगे चलते हैं। Who are the four wheels or four pillars of novel? नोवेल की बात हो रही है तो केड़े चार राइटर ने जिन्होंने फोर व्हील्स किया जाता है या फोर पिलर्स किया जाता है ऑफ नोवेल? क्योंकि नोवेल की बात हो रही है, हमने हेनरी फील्डिंग की बात कर ली है। कहते केड़े वो चार सी जिन्हों ने जो नोवेल की गाड़ी है ना उसके चार पहियों के रूप में काम करा। ठीक है ना, फोर व्हील्स ऑफ नोवेल। तो ये नोवेल हो गया, ये इसके फोर व्हील्स हो गए। तो देखे कौन कौन सी हैं जो इनके, वेल डन, मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग करेक्ट, वेल डन, वेरी गुड, यस वेरी गुड। इसमें आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो आंसर सारे तो ठीक है। अब देखना इसका जरा आंसर क्या है, तो हम देखें इसका आंसर। तो चार है जी। सैमुअल रिचर्डसन स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 51, नोवेल लिखने 51 साल की उम्र शुरू किया। हेनरी फील्डिंग, Tobias Smollett and Lawrence Stern. These are the four writers. याद रखना है जी। देखो जे तुसी रिच होना है रिचर्डसन, तो तुहाडी जिहड़ी फील्डिंग है ना वो बड़ी ही स्टर्न हार्ड होनी चाहिए है। स्मॉल फील्डिंग तो कदे जिते नहीं जाता। ठीक है ना, या फिर अं कह सो जो स्मॉल होंगे ने दे कैन गेट रिच बाय गिविंग स्टर्न फील्डिंग। किवें भी याद कर लो, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट एंड लॉरेंस स्टर्न। ये है जी चार व्हील और पिलर्स ऑफ इंग्लिश नोवेल। क्यों थे जरा देखिए। ईच ऑफ दीज राइटर्स क्रिएटेड देयर ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। इनमें इंपॉर्टेंट क्या था, चारों का ही अपना अपना तरीका से लिखने का। अब रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग की तो आपस में बनती नहीं थी, 36 का आंकड़ा था, एक दूसरे के खिलाफ लिखते सी। पामेला का शमेला भी बना तो जोसेफ एंड्रयूज भी आया, कैरेक्टर भी आए। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज राइटर्स क्रिएटेड देयर ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। बिल्कुल जी। अगर हम रिचर्डसन की बात करें तो एपिस्टोलरी नोवेल हो गए, है ना, एपिस्टोलरी नोवेल हो गए, यानी कि एपिस्टोलरी मींस लेटर फॉर्म में नोवेल लिखे रिचर्डसन।
अब हेनरी फील्डिंग कॉमिक एपिक पोम इन प्रोज हो गई, अलग तरीका हो गया. These four authors popularized the novel as that is known today. तो इसको वाइडली जो आज जाना जाता है ना, वो अगर चारा ने मेहनत की है, that's why this is known as English novel. So these four are known as the four pillars or four wheels of English novel. चलो जी नेक्स्ट देखे क्या क्वेश्चन है. वेसेक्स नॉवल एसोसिएटेड विद. आसान. आरती वेरी गुड, हो जाएगा, सारा हो जाएगा रिकॉल. ये बेसिक है, लेकिन बेसिक के साथ आज कुछ अटैच भी करिए इंफॉर्मेशन कि किवें नु याद कर. मुश्किल नहीं है, जब ये चीजें बाहर आती है ना तो क्विकली ऑप्शन आन गया तो और इजी हो जाएगा. अभी तो आप बिना ऑप्शंस के कर रहे हो, कल मैं आपको ऑप्शंस के साथ प्रेजेंट करूंगा और इजी लगेगा. वेल डन. वेसेक्स का नाम आते ही सबको याद आ जाता है हमारे साथ कि वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस हार्डी है. थॉमस हार्डी. नो वेसेक्स पोम्स भी लिखी गई थी, वो भी थॉमस हार्डी की ही है. थॉमस हार्डी. वेसेक्स इज द फिक्शनल, याद रखना फिक्शनल काल्पनिक है, लिटरेरी लैंडस्केप created by the English author Thomas Hardy as a setting for his works, his novels. ठीक है. अब वेसेक्स नोवेल की सेटिंग हुण आपां जदों गल करने हैं, कई और भी थे जिन्होंने अपने बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए नोवेल लिखे, आर के नारायण का नाम आएगा, लेकिन जेडे वेसेक्स सेटिंग है ना, ये पूरी तरह से याद रखना फिक्शनल पूरी तरह से नहीं है. मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में आप देखते हो डॉर्चेस्टर को यूज करा गया है. मतलब जेडी जगह ते रह चुके कुल मिला के अराउंड 10 काउंटीज हैगियां सी, जिन्हों मिला के उन्हें वेसेक्स की से मतलब ये बैकग्राउंड जो जगह क्रिएट करी. एंड दिस क्रिएशन इज नॉट ओवरऑल फिक्टिशियस, सारी काल्पनिक नहीं है, क्योंकि थॉमस हार्डी जिथे पैदा होया बड़ा हुआ वही चीजों को, लेकिन थोड़े थोड़े नाम बदल के थोड़ी सेटिंग मैनिपुलेट करके इसने पेश करी है. तो ये जगह है, लेकिन जी नोवल चाहती है वो फिक्टिशियस बन जाती है, लेकिन काफी चीजें रियल और जगह हैगी. ठीक है, तो इसलिए और इसकी पोम्स भी वेसेक्स नाम से जानी जाती हैं. तो थॉमस हार्डी इज इजी टू रिमेंबर कि एंड पोम्स एंड नॉवेल्स वो जो बैकग्राउंड रहेगी वो वेसेक्स है. नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट गॉथिक नॉवल. गॉथिक, अब नॉवल की बात हो रही है तो एक बार चले कि गॉथिक कल तो दसिया सी, हिंट दिता सी, गॉथिक हॉरर. तो पहला गॉथिक नॉवल केड़ा सी, मतलब अब ये ट्रेडिशन कहें तो किसने शुरू करा था, देखने वाली बात ही. He was the first one to initiate Gothic elements in work, in stories, and then from there on it become a fundamental. मतलब बड़े राइटर्स ने यूज किया इन्होंने कि की चीज़ें यूज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए. हॉरर फिल्में इंडिया च आप देखते हैं. वेल डन. एंड यू आर ऑल स्पॉट ऑन. ये नहीं है कि कोई 2 साल पहले करके गया है. स्टिल these are the basic questions and you remember the tricks. Well done. तो गॉथिक नोवेल का नाम याद आते ही हमारे पास आता है द कासल ऑफ ओट्रेंटो. याद रखना है सारे. दिस इज द फर्स्ट, was written in 1764 by होरेस वाल्पोल. और ये है जी, देखो जिसका नाम ही होरेस है, हॉरर वाली चीजें लिखेगा ना, होरेस वाल्पोल. और इसने वाल पे ऐसे हॉरर वाली पिक्चर दिखाई बस. एंड इज कंसिडर्ड द फर्स्ट गॉथिक नोवेल. इट्स सुपरनैचुरल अकरेंस, प्लॉट ट्विस्ट, फ्रेमिंग, medieval that is outdated or old fashioned gothic setting. रेडक्लिफ तबिंदा नाम है, एन रेडक्लिफ तो नाम था उसने. आप लुइस मंक का नाम मैंने कल आपको बताया था, लुइस मंक, एन रेडक्लिफ, they were also the writers, those who wrote in Gothic. But इसकी शुरुआत करने वाला होरेस वाल्पोल था. होरेस वाल्पोल, he wrote the first work, the Castle of Otranto, published in 1764. It is considered the first Gothic. Its supernatural occurrence. क्यों था Gothic? Supernatural occurrence, devils, and then dungeons. Dungeons होता है underground rooms, underground cells, narrow roads, ruinous castles. ये सारी चीजें उधर प्रेजेंट की गई हैं. Plots, twist, rapes and murders, framing, medieval is old fashioned, Gothic setting. ये सारा
हॉरर में होते, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ हॉरर फिल्म ਨੂੰ सीन ਨੂੰ याद कर लिया, सारा ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ है। तो क्या था इसका इंपॉर्टेंट, द कासल ऑफ ओट्रेंटो फर्स्ट गॉथिक नोवेल क्यों था, ड्यू टू इट्स सुपरनैचुरल अकरेंस, प्लॉट ट्विस्ट, फ्रेमिंग मेडिवियल गॉथिक सेटिंग, जो मैंने आपको दिखा दिया, इसलिए इन्हों मन्या जाता है। रिवेंज ट्रेजेडी, चलो नोवेल से निकल के थोड़ी ड्रामा की बात करें। कौन है, कौन सा बच्चा था जिसने बदला लेना शुरू किया? देखो, बदला लेना बच्चों की खेड नहीं है, इत्थे तो बच्चों की खेड हो गई। रिवेंज ट्रेजेडी अ ट्रेडिशन स्टार्टेड बाय, गॉथिक की बात कर लिए तो बदला किन्ने लिया पहले, सब तो पहले ये भी देख लिए। वेल डन, वेरी गुड, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी एंड यू रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ जी, तो हम कहते हैं कि बदला लेना बच्चों की खेड नहीं है, बच्चों की खेड, किड, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स मेंबर समटाइम इंक्लूडेड। रिवेंज ट्रेजेडी स्टार्टेड बाय, तो किसने शुरू करा? वेरी गुड, तो रिवेंज ट्रेजेडी स्टार्टेड बाय नन अदर देन इट वाज थॉमस किड द स्पेनिश, और उसके वर्क का नाम क्या था? स्पेनिश ट्रेजेडी। ये पहला वर्क था जिसमें ट्रेडिशन ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी स्टार्ट। फिर आप ओथेलो आप पढ़ोगे, एंड देन जो शेक्सपियर के आपने देखोगे, हेमलेट, द मोस्ट प्रोमिनेंट हेमलेट, बिल्कुल सुरभि, हेमलेट आ जाएगा। तो किवें रिवेंज ट्रेजेडी वो सारा शुरू होता है। एस्टेब्लिश्ड अ न्यू जॉनरा इन इंग्लिश थिएटर, तो एक नवी शुरुआत होगी, एक नया जॉनरा, एक न्यू टाइप ऑफ ड्रामा, द रिवेंज प्ले और रिवेंज ट्रेजेडी। हाँ जी बिल्कुल प्रियंका, बेन जॉनसन ने इसमें काम करा था हीरो के रूप में, प्रोटैगनिस्ट है ना। तो थॉमस किड द उसका वर्क था स्पेनिश ट्रेजेडी। एस्टेब्लिश्ड अ न्यू जॉनरा इन इंग्लिश थिएटर, द रिवेंज प्ले और रिवेंज ट्रेजेडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु आर लेक पोएट्स? इजी वन, दिस टाइम इजी वन। हु आर लेक पोएट्स? बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ हमेशा ही विजडम कॉन्वेंट स्कूल चले जाते हैं, है ना। आज ही विजडम कॉन्वेंट स्कूल से एक इनविटेशन आया है डांडिया दी लई, तो विजडम कॉन्वेंट स्कूल पहुंच गए हम जी। जो फाजिलका वाले हैं दे कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो हु आर लेक पोएट्स? आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ एक अलग इंफॉर्मेशन देंगा। आपने सबने ये राइटर्स के बारे में सुना, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, इनके नाम पहले देखें। नाम है जी विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी, विजडम कॉन्वेंट स्कूल हम ऐसे बना रहे थे, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए, यू नो दीज थ्री राइटर्स नाउ, ठीक है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी, दे वर टर्म्ड एज लेक पोएट्स क्योंकि वो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट रहंदे सी ताई। बाकी कोई ਉਹਨਾਂ ਦਾ सेम स्कूल, ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, सेम स्कूल ऑफ पोएट्स ਸੀ, ठीक है। they were not the same school of poets, mind it, they were not same school of poets. now let's add to this, नहीं relatives नहीं थे जी, relatives नहीं थे, they were not relatives। अब बताता हूं आपको, सोचो। चलो अमनजोत ने आंसर एक हिंट किया कि ये रिलेटिव्स ने, क्या होगा भी क्यों इन्होंने स्कूल लेक पोएट का नाम दिता गया? एक तो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, ठीक है। हुण दूजा तुसी हैरान रह जाओगे, कईयां नूं शायद नहीं पता होएगा, इनकी प्रशंसा करी गई कि इनको क्रिटिसाइज करा गया, कि अटैक किया गया इन्हां ते? कोई ऐजा नहीं गा, फिक्र ना करो। इनकी प्रशंसा करी कि कुछ ऐसा कॉमन था कि इन्हां ते कुछ इन्हां नूं कीता गया। एक्चुअली एक्चुअली यस यस यस, जो आंसर कर रहे हैं, इनकी प्रशंसा करी गई थी कि नहीं, जरा देखो, ये तुहाडे लिए एक एडेड इंफॉर्मेशन है। द लेक पोएट्स all lived in the lake district, obviously तभी इनको कहा गया। और याद रखना, they were not of the same school, same school मतलब इन्हां दी राइटिंग दा तरीका सेम नहीं सी। अब ये देखो, अब आप पढ़ो क्या लिखा है इसके अंदर हमने, द लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, ठीक है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, तो वेट जरा स्लाइड को आगे लेके आए वापस, हाँ जी।
They were named only to be uniformly disparaged. Disparage means insult, attacked, criticize or underestimation. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪੈਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮਨ ਲਿਟਲ फील लिटल, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ महसूस करवाना होता है। देख लो लेक डिस्ट्रिक्ट में थे, ये इंफॉर्मेशन मास्टर कैडर वालों को हमने नहीं दी थी, लेक्चर वाले ने उसे दिखा रहे हैं, नॉट ऑफ सैटेनिक स्कूल अभी, ठीक है ना, सैटेनिक स्कूल वाले नहीं, ठीक है। लेकिन इनको एडिनबर्ग रिव्यू में ये बोला गया कि दे आर नॉट गुड पोएट्स, मतलब कुछ समझ लो कदे ना कदे रिव्यूज चलते रहते ने। सो दे वर ओनली नेम्ड टू यूनिफॉर्मली डिस्पैरेज्ड। लेकिन ये ਤੁਹਾਡੇ लिए एक एडेड इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया जो तुहानू पहले शायद नहीं पता सी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको एमसीक्यू बेस्ड, लेकिन वी नो इट ना। क्यों? क्योंकि कई बार होता है लेक डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, चलो लेक पोइट रहते मैंने था कहता, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि इन्हों की कोई लिखन का तरीका सेम नहीं सी। ओनली दे वर यूनिफॉर्मली इकट्ठा इन्हों अटैक करना सी इन्हों, मतलब इन्हों to make them feel little, just to criticize them. It was done. तो ये है लेक पोइट्स की सच्चाई। Who are the first generation of romantic poets? अब कोई ऑफिशियल डेट तो है नहीं भी कदों शुरू होया डेट, लेकिन ये माना जाता है कि लिरिकल बैलेट्स के साथ ही रोमांटिक शुरू हो जाती है। तो who are the first generation of romantic poets? फर्स्ट जनरेशन एडिनबर्ग रिव्यू बबली एक जर्नल मैगजीन है जिंदे विच रिव्यूज लिखे गए से इन्हां दे खिलाफ, ओनू कहंदे ने। वेल डन जी। बस इसमें एक ही नाम चेंज होता है, ठीक है ना, इसमें एक ही नाम चेंज होगा जैसे आप पहले कर रहे हो, जिवें लेक पोइट कीते तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स वर्ड्सवर्थ है, कोलरिज है और यहाँ पर विलियम ब्लेक हो जाता है। हुण देखो उन्होंने याद किवें रखना है, अगर तुसी लेक ते लेक लेक मींस लेक पॉइंट तो आपको साउथ में जाना पड़ेगा। साउथ मतलब ठीक है ना, साउदी। अगर लेक पॉइंट की गल झील ते जाना तो साउथ ते जाना पड़ेगा, तो लेक साउथ को याद कर लो, एक रख लो क्योंकि दो तो कॉमन ही है। और वैसे भी याद कर लो ब्लेक जो है ना उन्होंने दादा है, मतलब पहले आ गया था ना, प्री रोमांटिक पोइट माना जाता है इसे। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड ब्लेक। विलियम ब्लेक ने इनसे भी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज से पहले लिखना शुरू कर दिया था, तो उसे प्री रोमांटिक पोइट भी माना जाता है। हाँ बिल्कुल, सोनम ब्लेक जो है लेक पे नहीं गया क्योंकि लेक पोइट नहीं गया, बिल्कुल वेरी गुड। ब्लेक लेक पे नहीं गया, टर्म करना भी आसान, ठीक है। तो इस तरह है। नेक्स्ट अब देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ पोइट्स that created the basis for the later ones. जो फर्स्ट जनरेशन पोइट सी वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड ब्लेक, they created the basis, बेस तैयार किया, प्लेटफॉर्म फॉर द लेटर वंस जो बाद में आए। तो केड़े केड़े बाद चाहे जरा देखिए। बाद में आए सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स, तो ये कौन से वाले होने हैं, मतलब पहले फादर आ गए, उन्होंने बच्चे केड़े केड़े ने, फिर उन्होंने चो प्यो ते एक कह जा भी है प्यो पुत्र की बनती भी नहीं होंगे विचों, आपको पता होगा। पहले हम ये बात करेंगे कि कौन से हैं, फिर किस किस की नहीं बनती थी, जरा ये भी देख लें। वेरी गुड, शाबाश, आंसर इज गुड। हाँ, तो केड़े दो जने सी जिन्हां दी केड़ा प्यो पुत्र सी जिन्हां दी बनती नहीं सी। वेल डन मनप्रीत, शाबाश। हाँ यस पूजा, वेरी गुड। जिनकी बनती नहीं थी वो थे वर्ड्सवर्थ और बायरन, वर्ड्सवर्थ और बायरन ये थे। वेल डन रोहिणी, ये इन दोनों दी नहीं बनती सी। तो कौन कौन है सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, पहले देख लें। पर्से बिश शैले, जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन। पर्सी बिश शैले, जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन, दे आर नोन एज सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। बिल्कुल जी, बायरन ने जानबूझ के अपनी लेटर में वर्ड्सवर्थ को टर्ड्सवर्थ लिखा था और वर्ड्सवर्थ उसे पागल ही बोलता था। All three produced important literary works. कीट्स, शैले और बायरन की बात करो, बड़े इंपॉर्टेंट वर्क प्रोड्यूस करा। डिस्पाइट दैट दे डाइड सो अर्ली, मरे बड़ी यंग एज में। पर्सी बिश शैले एट द एज ऑफ 30,
John Keats at the age of 25, 26 around, and Byron at the age of 36. छोटी उम्र च मरे, लेकिन इनका काम आज भी याद किया जाता है. They died at a very young age, all three. Very respectable. हाँ, बायरन को रिस्पेक्ट नहीं मिली है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी? ये तो आप भाग भाग के करोगे, छोटे होते देखे सी ट्यून आज भी याद आती, ताना ना ना रे, है ना. हमको ये समझ नहीं आती थी मालगुडीज वाला, लेकिन ये ट्यून सुनने के लिए ना हम पहुंच जाते थे, बस ये सुननी है. तो वही चीज है जी, इसके रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर, नारायण स्वामी. आसान सा होगा बिल्कुल जी, बेसिक है, लेकिन इंडियन है, राइटर है, अपन पता है. और ये जो पूरी जगह पूरी तरह से फिक्शनल है. अब जब वेसेक्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज नॉट कंप्लीटली फिक्शनल, बट दिस वन इज कंप्लीटली फिक्शनल. फिक्शनल सी साउथ में कहीं तो कहा आर्क एंड नारायण फिक्टिशियस इज काल्पनिक. ठीक है ना. फिक्टिशियस मालगुडी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका की कई जगह पे कहीं ना कहीं से सेट करा गया. आर के नारायण कहता मैं एक दिन ना ट्रेन पे जा रहा था. ट्रेन पे जाते जब मैं रास्ते में रुका, एक रेलवे स्टेशन को देखा, तो रेलवे स्टेशन को देख के मेरे दिमाग में आइडिया आया. और वो स्थान जो है, उसके बाद कई जगह पे आप देखो, इसके नॉवल में आपको रेलवे स्टेशन दिखेगा, गाइड में किवें होगा सी रेलवे गाइड ही है होते. तो वहां से इसने आइडिया लिया कि मालगुडी क्रिएट करना है, एंड देन ही वेंट ऑन टू बिकम. ये जो मालगुडी है हमारे लिए कितना एक इंपॉर्टेंट चीज बन गई है, वी नो इट. सेटिंग फॉर द मोस्ट ऑफ हिज वर्क नारायण की जो है वो यहीं पर है. और कहां से शुरू करा था फर्स्ट नॉवल, और यहीं पर ही याद रखना एक क्वेश्चन बनता है साडे लिए बेसिक, कि मालगुडी दी शुरुआत केड़े नॉवल तो हुई सी. तो वो फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड से हुई थी, और वो पहला नॉवल है और यहीं से शुरू हो गई थी. ठीक है, और यहीं से शुरू हो गई थी. और कौन था ऐसा इंस्ट्रूमेंटल बंदा जिसने इसके लिए पब्लिशर ढूंढ के लाया ताकि पहला नॉवल थे अगले 4 नॉवल पब्लिश हो सकन? कौन था वो बंदा? बस खुश रहो, हरे भरे रहो हमेशा, है ना. वेल डन. यस, सुखप्रीत फॉस्टर्स नहीं थी, ये था हरा भरा. मैं कहते हैं ना, हरे भरे रहो, खुश रहो. हाँ जी, इसका नाम भी एडिट करने के लिए बोला था, तो इट वाज ग्रेहम ग्रीन. ग्रेहम ग्रीन. ग्रेहम ग्रीन सी, जिसने उसको सलाह भी दी थी कि नाम शॉर्टन कर रसीपुरन कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण. जो कहते हैं उन्होंने इंग्लिश बोलने वाली जी ऑडियंस है उन्होंने पता नहीं लगना. तो उसका मेंटोर था पल्लवी, बिल्कुल नारायण का मेंटोर. एंड ही वाज इंस्ट्रूमेंटल, ग्रीन वाज इंस्ट्रूमेंटल एंड फाइंडिंग पब्लिशर फॉर हिज फर्स्ट 4 बुक्स. तो यहीं से शुरू होती है उसकी लाइफ, स्वामी एंड फ्रेंड, और यहां से शुरू हो गया था मालगुडी डेज. ओके, लेट्स सी व्हिच इज नेक्स्ट वन नाउ. Who is called Nightingale of India? Easy one. Who is called Nightingale of India? वेरी गुड. इस पे ज्यादा देर रुकूंगा नहीं क्योंकि आंसर बहुत आसान है. सरोजनी नायडू. क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ कलर, इमेजरी एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ हर पोइट्री. उसकी पोइट्री की जो लिरिकल क्वालिटी सी, उस कारण उन्होंने क्या गया सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. कहा किसने? किने क्या सी? अब ये बताओ किसने कहा था? वेल डन लक्ष्मी. हाँ, तो बिंदा वो लीडर कौन सी? वेल डन पल्लवी, शाबाश. नहीं, टैगोर नहीं था. इट वाज MKG, महात्मा गांधी, है ना. बिल्कुल जी, महात्मा गांधी. ही वाज द वन जिन्होंने उनकी लिरिकल पोइट्री की जो क्वालिटी थी ना, लिरिकल क्वालिटी. सो बिकॉज ऑफ द कलर, इमेजरी एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ हर पोइट्री, शी वाज कॉन्फर्ड द टाइटल द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. Naidu's literary work as a poet earned her the nickname the Nightingale of India by Gandhi. महात्मा गांधी ने उनको ये टाइटल दिया था. तो चलो, स्लाइड थोड़ी सी मेरे से ज्यादा तेज भाग रही है.
who is called Charles Dickens of India? Who is called Charles Dickens of India? बस आपके उत्तर सुन के ना आनंद आ जाता है। इस मुल्क में, जिस मुल्क में पॉजिटिव एनर्जी का राज हो, उसमें आनंद ही आनंद रहता है ना। साडे मुल्क विच राज ही पॉजिटिव एनर्जी दा है, तो सारे आनंद च रहिंदे ने, आनंद ही आनंद आता है। बिल्कुल, आपकी बातें सुन के भी मेरे को मेरे मुल्क में क्या हर एक में अस चाहांगे कि आनंद रवे। तो बिल्कुल जी, चार्ल्स डिकन ऑफ इंडिया, तो इट इज मुल्क राज आनंद। क्यों कहा भाई, क्यों किया गया, जरा हुण दसो। लेट्स ऐड सम इंफॉर्मेशन टू इट। व्हाई? सोनम कहती फॉर नॉवेल्स। ओके, ऐसा क्या कर दी नॉवेल्स में कि इसको मुल्क राज आनंद को चार्ल्स डिकन ही बोल दिया इन्होंने? वेल डन सुरभि, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। मोस्ट ऑफ यू आर ऑन ट्रैक, वेरी वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल, तो देखते हैं क्या था। चार्ल्स डिकिंस used the serious issue of poverty for the condition of downtrodden in the late 19th century. मुल्क राज आनंद did same in his novels. मुल्क राज आनंद में वैसे करा, इसलिए तुसी बिल्कुल सही सी कि लाइफ ऑफ पीपल मिडिल क्लास, उनकी कंडीशन, सोशल कंडीशन, यस, वही चीजें बिल्कुल सोनिया पीडीएफ मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो ये पॉवर्टी ने यूज करना जो मुल्क राज आनंद ने शुरू कर दी, ठीक है, अनटचेबल, तो सारा फिर वहीं से शुरू हो गया उनका। Who is called the father of English essays? तो ये भी देख ले, फादर नोवेल का भी हो गया है, तो अब फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कौन है, जरा ये भी तो देख ले। वेल डन, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज सिलेबस, सिलेबस का मतलब होता है कि इंग्लिश लिटरेचर मींस वी शुड नो अबाउट इट। तो वेल डन जी, आंसर है इसका फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन ये है जी फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि फादर सानू इन्होंने सारे दा बिल्कुल जी। अगर इसके ऐसे पढ़ोगे ना आप, तो आप इसके फैन हो जाओगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स इन इंग्लिश। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? इसको हम ऐसे और भी कर लेते हैं, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। दोनों ही इसमें ऐड कर लेते हैं, लिटरेचर का भी और पोइट्री का भी। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? वेरी गुड, ठीक ही होगा मोस्टली जिन्होंने भी सुना है, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है। वेल डन सोनिया, शाबाश। यस, वेल डन निशा, शाबाश। बिल्कुल जी, वेल डन। आंसर इज जेफरी चौसर। जेफरी चौसर का इंटरव्यू डिटेल याद होगा। चौसर वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट, ही हैज द एबिलिटी टू राइट पोइट्री। तो वो था जिसको पोइट्री भी लिखनी आती थी। और जो कह टाइम जो लैटिन वर्ड सी था, फिर इंग्लिश विच लिखण वाला जेफरी चौसर ही सी। तो जेफरी चौसर इंट्रोड्यूस्ड द इंग्लिश लैंग्वेज टू द वर्ल्ड, दुनिया को इंग्लिश लैंग्वेज दिखाई। However, most of the words were included in Latin and French. So ये तो हो गया जेफरी चौसर को कहते। Who called him father of English poetry? जरा ये तो बताओ, कईया ने आंसर ऑलरेडी देता। वेरी गुड, किसने कहा? मैं तो सूख ही गया आपका आंसर की वेट करते करते। मैं ड्राई हो गया हूं, और मैं लॉयन के घर में जा रहा हूं। लॉयन का घर डन होता है ना, बस आई एम ड्राई एंड गोइंग टू डन। वेरी गुड, शाबाश। एंड इट्स yes, 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 John Dryden. John Dryden. It was John Dryden who gave the veneration, honor, इसको honor बोलते हैं, जो टाइटल कॉन्फर किया गया, fatherhood of English poetry to Chaucer
इन हिज वर्क, अपने उस काम में दिया था, ये काम कौन सा था? प्रीफेस टू, वेट करिए, आ गए यहां पर। तो इन हिज वर्क प्रीफेस टू द फेबल्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न्स, इस वर्क में चौसर को उसने फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा। मैथ्यू आर्लोन ने भी रिस्पेक्ट दी थी और ये चीज अपने वर्क में कही। तो ही वाज द वन, जॉन ड्राइडन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु कॉल्स हिम फादर ऑफ, हु कॉल्ड हिम, नहीं नहीं, ये हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा है जी, ये नहीं। हु इज कॉल्ड, इसको यहां नहीं है, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा बताना है, इसको हटा दीजिए, ये बाद में करेंगे। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, सो इट इज विलियम शेक्सपियर, क्योंकि मेरे को पता था आसान है। विलियम शेक्सपियर इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। शेक्सपियर्स वर्क ट्रांसफॉर्म इंग्लिश थिएटर, पूरा इंग्लिश थिएटर ही बदल गया जी। एंड लेफ्ट एन इंडेलिबल, इंडेलिबल जिसको हम इरेज नहीं कर सकते, जिन्हों से मिटा नहीं सकते, मार्क ऑन द वर्ल्ड लिटरेचर इवन टिल डेट अनराइवल्ड। आप शेक्सपियर के साथ सिर्फ उसका एक अगर स्टेटस का बंदा देखोगे, स्टेचर का, तो जीबी शाह जैसा ही है। तो विलियम शेक्सपियर वर्क ट्रांसफॉर्म द इंग्लिश थिएटर। और आपको ये पता है ना, इसके सबसे ज्यादा प्लेस जो इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज जो किस एज में लिखी गई? एलिजाबेथ है इसका आंसर के कुछ और है? यस, हाँ जी, तो वो है जैकोबियन एज। यस, जैकोबियन एज में इसकी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज लिखी गई थी। ऑल द ही बिलोंग टू एलिजाबेथन। ठीक है जी, वेल डन। सो नेक्स्ट वन, हु कॉल्ड हिम द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा? ये भी गलत है जी, ये इसको यहां पर नहीं है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जल्दी से कर दो, क्वेश्चन आंसर आ गया गलती से सामने। तो ये है फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा, हु कॉल्ड हिम नहीं, इसको हटाना भूल गए हैं, तो इट इज फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। मैं नाम आपको सीधे दे देता हूं, आपने शायद ना सुना हो, तो इसका आंसर है हेनरिक इब्सन। मॉडर्न ड्रामा का जो है वो हेनरिक इब्सन है जी, आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, हेनरिक जॉन इब्सन। हाँ जी, तो हेनरिक इब्सन ने नाम सुने होगा कईयों ने, बिल्कुल जी, रमनदीप, डॉल्स हाउस, यस, डॉल्स हाउस इसका पढ़ा हुआ सिलेबस में आता है। तो हेनरिक जोहान इब्सन और हेनरिक इब्सन एज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर, थिएटर में जो मॉडर्निज्म आया है ना, वो इसी के कारण आया है। इब्सन इज ऑफ्टन रेफर टू एज द फादर ऑफ रियलिज्म एज वेल। आप इसे फादर ऑफ रियलिज्म एंड वन हु ब्रॉट मॉडर्निज्म टू द थिएटर, ही यूज्ड ऑल फ्रीडम। और कई राइटर ने फिर इसको फॉलो करा कि आजादी की चीज होती है ड्रामा दे विच, जो मॉडर्निज्म है ना वो ये लेके आया। So he was the one, Henrik Ibsen or Henrik Johann Ibsen, he was the one instrumental and the founder of modernism in theatre. Ibsen is often referred to as father of realism. 15 क्वेश्चन पूरे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए रिडल के रूप में है, अब देखने हैं कि वो किस किसने ये सिलेबस पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सिमरन, वेरी गुड। तो अब ये क्वेश्चन आखिरी, आज का 6 बज गए, और ये क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई कोट, ये कोट कौन से प्ले में आई थी? ऑन द गोल्डन कास्केट हु चूजेस मी शैल गेन व्हाट मैनी मेन डिजायर, ऑन द सिल्वर कास्केट हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, ऑन द लेड कास्केट हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड हैजार्ड ऑल ही हैड। ये आपने क्योंकि ग्रेजुएशन चाहे कईयां नू कॉन्वेंट से पहले ही आ जाता है, इलेक्टिव इंग्लिश में भी आता है, और ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, एलिजाबेथन एज का राइटर है। बिल्कुल जी, कास्केट सीन आप बहुत पढ़ते हो, वेल डन। तो कौन सी हीरोइन थी? आंसर तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज करेक्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। कौन सी वो हीरोइन थी जो हीरो से भी ज्यादा काम करती है इस प्ले में? दैट इज पोर्शिया, पोर्शिया, वेल डन। तो एक कोट, कल भी आपके लिए कुछ नई पहेलियां लेके आऊंगा, उन पहेलियों को आप सॉल्व करोगे,
तो आपने ये कोट को बिल्कुल सही पहचाना। पोर्शिया का कास्केट सीन है, क्योंकि कास्केट कास्केट वर्ड आ रहा है, तो आपको मिल गया। अब आपके लिए एक और चीज है मोटिवेशनल, जरा वो देख लीजिए। टू कंक्लूड दिस डे सेशन, कल थर्ड डे का सेशन रहेगा। वॉच द पिक्चर नेक्स्ट एंड अट्रैक्ट एंड फाइंड योर सेल्फ देयर नेक्स्ट। तो अगली फोटो देख लीजिए और अपने आप को वहां देख लेना। ये है जी आज की आपके लिए फोटो, द पिक ऑफ द डे। इस पिक्चर को देखते रहिए। सुरभि जरूर तो बाकी तो दिखाएंगे, लेकिन अब ये आपको देखना है कि अब नेक्स्ट लेक्चर वाले और मास्टर कैडर वाले अपने आप में देखेंगे। बिल्कुल आएगी सोनिया, बिल्कुल आएगी, बुक में आपकी फोटो आएगी, सारी आएगी। तो देखो द नंबर नेक्स्ट यू लिखा पड़ा है ना, लुक एट दिस, नेक्स्ट यू, और वो नेक्स्ट यू आप ही तो हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। स्लाइड से कलर चेंज करना है तो देख लो, कल कलर चेंज कर देंगे। सिमरन हो जाएगा, बिल्कुल होगा। It's all done. We do not have a second thought. We just carry with a single-minded devotion. We extend effort, and we just believe in ourselves, and we believe in you. We trust your talent more than you do. ठीक है जी, कल दा अंदर जब बैकग्राउंड स्लाइड है ब्लैक कर देंगे। थैंक यू शालिनी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कल फिर मिलेंगे, एक और सेशन, एक और पॉजिटिव एनर्जी। कल द क्वेश्चन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, 4 ऑप्शंस भी होंगी, कुछ रिडल्स भी होंगी। विल मीट टुमारो। थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड नाइट। थैंक यू मिस्टर जूम यूजर। अभी नाम नहीं आया आपका, जा तो नाम बताओ मेरे को, मैं पढ़ लूंगा। आपका नाम ही नहीं आया ना, हमें तो जूम ही दिख रहा है सिर्फ। प्रवीण, ओके प्रवीण, थैंक यू प्रवीण, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सोनम, थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, कल इन ब्लैक कर देंगे जी। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।